Good morning, students. Today we are going to discuss about your first chapter, that is crop production and its management. Crop production means फसल उत्पादन करना and about your management. कैसे प्राप्त करेंगे, एग्रीकल्चर में क्या क्या चाहिए, whatever the products we produce and whatever the practices we need. So agriculture, agri means field and culture means cultivation, खेती बाड़ी करना. Crop means फसल, same kind of plants grown at one place. एक ही टाइप का plants एक जगह पे जब उगाते हैं उसको फसल बोलते हैं. And depending upon the crops, seasons are of two types. Those are Kharif season and Rabi season. Kharif means which is produced the seeds when sown in the rainy season, that is जून to अक्टूबर महीने में जो हम लोग सीड्स को सो करते हैं. सो मीन्स पेरना करते हैं, दैट उगाते हैं, दैट मीन्स सो. एग्जाम्पल पैडी, कॉटन, like that. And Rabi season it comes in winter season and November to April. Example wheat and barley. Whereas Kharif season depends on rainfall, monsoon, southwest monsoon, but Rabi does not depends on any season, any rain. Now horticulture means the practice of growing flowers, fruits and vegetables. Example rose, jasmine, and some crotons, decoration plants, like so those growing, that means in our house we grow many plants like crotons, show flowers. So that type of cultivation is known as horticulture. Now agricultural practices. एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के लिए एंड एग्रीकल्चर को किसान क्या क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, जैसे preparation of soil, first one, and secondly he has to select the seeds, and third sowing of seeds, fourth one irrigation of crops, fifth one manuring, sixth one weeding, seventh one protection of crops, eighth one harvesting, and ninth one storage. So first one, preparation of soil. Preparation of soil means मिट्टी को अच्छी तरह से उसको उगाने के लिए तैयारी करना. So by how he will do that by ploughing and tilling. Ploughing means जुताई करना by to expose inner layers of the soil. किस लिए ऐसे करते हैं, जुताई इसलिए करते हैं कि inner layers जो इनर लेयर्स बाहर निकले तो अच्छा सा उसको एयर, जो हवा जो है वो अच्छा सा पहुंच जाए अंदर तक, मिट्टी में जो अंदर तक चला जाए, इसलिए अच्छा सा प्लफिंग करते हैं पहले. एंड उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर, द टूल्स यूज्ड आर प्लफ, that means hull, and hoe, that is kudali, and cultivator, and also we do the leveling should be done. Leveling means मिट्टी को एक ही तरह से समान रूप में ले जाना. The next one, selection of seeds. Selection means चुनना, बीज को चुनना है. तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, NSC शॉर्टकट है, एंड वो कॉरपोरेशन वाले गुड, हेल्दी, ड्राई एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स देते हैं फार्मर को. जैसे स्वस्थ वाला एंड सूखा, जो अच्छा, जो हेल्दी वाला, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स विच इज़ टॉल एंड विच इज़ गुड इन प्रोटीन, ऐसे सीड्स देते हैं फार्मर को. एंड थर्ड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स. सोइंग ऑफ सीड्स इज डन विद 4 methods. That is, first one, broadcasting. Broadcasting is also known as spraying. Spraying means like dikrana, yeah, with hand, that means spreading with hand. तो what is spreading? Spreading means फैलाना, हाथ से खेती में बीज को डालना. तो with the help of hand it will be done. That is a traditional type. It's a old type, old technology. And use of seed drills, even seed drills भी use करते हैं, वो
दैट मीन्स बाय मशीन. आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही, तो सीड ड्रिल्स आर यूज नाउ. Now third one, transplantation. Transplantation means, trans means from one place to another, plantation means plants. So transferring of seedlings from one place, that is nursery, to other place, actual place, that means where the plants are grown, it is said as nursery. जहाँ पौधे उगाते हैं, बहुत सारा वेराइटीज़ का पौधे जहाँ मिलते हैं खरीदने के लिए, उस जगह को हम लोग नर्सरी बोलते हैं. तो उधर से हम लोग खरीद के घर पे लाते हैं, फिर हम लोग न्यू प्लेस में उसको ग्रो करते हैं. तो उस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं हम लोग. नाउ फोर्थ वन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स एक्चुअली रूट्स के साथ एंड बीजों के साथ प्लांट्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा स्टेम्स, रूट्स, लीव्स के साथ भी germination होता है. That means new plant will be produced. How? By stem cutting, grafting. So many methods are there. So process of getting new plants by stem cutting, grafting, layering, that is, sorry. So we can do so many things to get the new plants. Like example, potato and ginger. पोटेटो में बहुत ज़्यादा दिन रखने के बाद उसमें बड्स आता है, तो उस बड्स में एक एक बड को हम लोग न्यू प्लांट जैसा ग्रो कर सकते हैं. एंड इवन रोज़ का स्टेम को कट करके हम लोग कटिंग करके उसको थोड़ा सा ग्राफ्टिंग करके रख दिया तो नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग. दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट वन, इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड, पानी देना खेती में. So that is also made through two steps, like traditional and modern. Traditional method में चेन पम्प्स, राहत etc. पुराने लोग यूज़ करते थे. एंड नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन करते हैं. व्हाट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन? स्प्रिंकलर इरिगेशन मीन्स, स्प्रिंकल मीन्स टू थ्रो ड्रॉप्स, छिड़कना. तो कैसे छिड़कते हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग पाइप्स, वर्टिकल पाइप्स लेते हैं. दैट मीन्स स्ट्रेट पाइप्स विद द नोजल्स. सो नोजल्स ऑलवेज रोटेट. व्हाइल रोटेटिंग इट विल थ्रो द वाटर. तो रोटेट होते हुए नोजल्स में से पानी छिड़क जाता है, स्प्रिंकल होता है. तो दैट्स वाई, सो दैट चारों तरफ पानी खेती में गिर जाता है, तो ऐसे पानी मिल जाता है पूरा खेती को. दैट सिस्टम इज नोन एज स्प्रिंकलर irrigation system. And next one, drip irrigation. Drip irrigation means पाइप्स में छोटे छोटे छेद रहते हैं एंड हर एक पौधों के पास, जड़ों के पास एक एक बूंद गिरने का सप्लाई, ऐसे उसको पाइप्स लेके सेट करते हैं. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप पौधों के पास, पौधे जड़ों के पास, दैट मीन्स रूट्स के पास ड्रॉप्स गिरता रहता है हमेशा, मतलब लगातार. तो दैट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन. नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज मैन्योरिंग. मैन्योरिंग मीन्स खाद देना, तो पोषण देना, दैट मीन्स प्लांट्स को प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. So that is also again of two types, that is manure and also fertilizer. Manure means organic, manual it is made, natural it is made, whereas fertilizers chemical, ये chemicals है. Manure are of four types: organic manure, farmyard manure, green manure, compost manure. Organic manure में natural waste matter of animals and plants. So जो नेचुरली प्रकृति से जो वेस्ट मटेरियल है, जो एनिमल्स का, प्लांट्स का गोबर एंड जो गिरा हुआ पत्ते, सूखा पत्ते, ये जो है मिट्टी में मिलके बहुत दिन के बाद या बहुत महीने के बाद वो थोड़ा सा सड़ जाते हैं, मतलब डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. तो ऐसे वो खाद बन जाता है फिर. तो उसको हम लोग, उस मैन्योर को हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं. फार्म यार्ड मैन्योर मतलब ये भी सेम थिंग, नष्ट होना, डिके होना, बट द थिंग इज सेम थिंग, गोबर एंड ट्विक्स, प्लांट्स का जो ट्विक्स है वो सब.
बट इट इज़ हल्का सा, पार्शियल मीन्स लाइटली, हल्का। तो वो ऐसे सड़ना डिके होने का प्रोसेस है, ये फॉर्म यार्ड मैन्योर प्रोड्यूस होता है, ब्राउन कलर का होता है वो। नेक्स्ट वन ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर वन मीन्स decomposed leguminous plants. Leguminous plants means peas, that is mutton, beans, and groundnut। ऐसे बीजों में, ऐसे प्लांट्स में जब फसल निकलने के बाद, मतलब फसल काटने के बाद, हार्वेस्टिंग होने के बाद, उस प्लांट्स को फिर नीचे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे उससे क्या होता है, उधर जो सॉइल है वो अच्छा सा डिकम्पोज होके, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है रूट्स में, तो उसकी वजह से अच्छा सा डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मीन्स नष्ट होना, अच्छा सा सड़ना एक टाइप का। तो ऐसे होने के बाद डेड एंड डिकेइंग बैक्टीरिया होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया, तो उसके मदद से राइजोबियम बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, ऐसे कुछ बैक्टीरिया है, तो वो डिकम्पोज करके ग्रीन मैन्योर बनाते हैं। तो सो दैट ग्रीन मैन्योर इज यूज्ड फॉर एज न्यूट्रिएंट्स, मैन्योरिंग करने के लिए काम आएगा। फिर कंपोस्ट। कंपोस्ट मैन्योर मीन्स एनिमल वेस्ट एंड किचन रिफ्यूज। तो घर में जो पील्स होते हैं, जो खाना बनाते समय, वेजिटेबल पील्स एंड फ्रूट पील्स जो होते हैं, छिलका जो है, तो उसको हम लोग एक गड्ढा खोद के, घर में एक गड्ढा खोद के पिट बना के, दैट मीन्स पिट, गड्ढा मीन्स पिट बना के, उसमें ये वेस्ट डाल के, गोबर या कुछ ऐसे छिलका डाल के, जो घर में वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का छिलका डाल के, हम लोग ऊपर से सॉइल से बंद करके, मिट्टी से फिर कवर करके पानी देते रहना रेगुलरली। अगर ऐसे करें तो वो कुछ महीने के बाद अच्छा सा कंपोस्ट मैन्योर बनेगा। ये हम लोग पौधों को दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स और अनदर टाइप, दीज आर केमिकली मेड, ये केमिकल से बनता है। फर्स्ट वन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट। पोटेसिक, पोटेसिक मीन्स सप्लाई ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम होता है इसमें, एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज KCl। नेक्स्ट वन फॉस्फैटिक, सोर्स ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट मिलता है इसमें से, अमोनियम सल्फेट, एग्जाम्पल। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो मीन्स लिविंग, जो जीवित है, लाइक राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स इसमें होता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर्स, सो दैट्स वाई दे एनरिच द सॉइल। तो इसलिए मिट्टी को अच्छा सा पोषण भरा हुआ बनाते हैं, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज बायो फर्टिलाइजर्स। नाउ नेक्स्ट वन वीडिंग। वीडिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, जो जंगली घास है वो वीड होते हैं, ऐसे टाइप का प्लांट्स को हटाने के लिए 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, दैट इज मैनुअल, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैनुअल मीन्स बाय हैंड, हाथ से अगर वीडिंग हुआ तो हाथ से वीड्स को निकाले तो मैनुअल होता है वो। एंड मैकेनिकल मीन्स बाय मशीन, यूजिंग बाय मशीन वी कैन डू दैट। एंड केमिकल बाय स्प्रेइंग सम केमिकल्स। Now next one, protection of crops. तो saving plants, that means protection means बचा के रखना है crops को. So by pesticides, insecticides and rodenticides, 3 types of methods are used. Pesticides, pesticides means toxic chemicals, these are जहरीले chemicals है ये, used to kill pests, जो पौधों के ऊपर pests होते हैं, छोटे छोटे कीड़ा जैसा, तो उन चीज़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, कीटाणु को या कीड़ा को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दैट केमिकल्स आर नोन एज इंसेक्टिसाइड्स। एंड रोडेंटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स मीन्स केमिकल्स टू किल रैट्स एंड रोडेंट्स, तो जो चूहा को और चूहा जैसे जानवर को, रोडेंट्स ऐसे चीज़ों को मारने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो है रोडेंटिसाइड्स, उनको रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग द ग्रेन। अब पूरा फसल हाथ में आने के बाद किसान इकट्ठा करके उसको, फसल को काट के इकट्ठा करता है,
तो उस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं. नाउ विनोइंग मीन्स अ नेचुरल मेथड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चैफ. ग्रेन्स को, फसल को काटने के बाद अनाज को अलग करना है चैफ से. तो चैफ से अलग करने का तरीका को हम लोग विनोइंग बोलते हैं. इट इज़ स्पीड सम ट्रेडिशनल टाइप है ये विनोइंग. पुराने लोग ज़्यादा मतलब पुराने लोग करते थे, अभी भी हो रही गांव में. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव पेस्ट्स को हटाने के लिए भी ये काम आएगा. स्टोरेज मीन्स यील्डेड क्रॉप ड्राइड एंड स्टोर्ड इन ग्रैनरीज और सिलोस में या ग्रैनरीज में, दैट मीन्स गोदाम में स्टोर करते हैं, बचाव करते हैं अनाज को. सो ड्राइड पहले, उससे पहले सुखाते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, क्रॉप रोटेशन मीन्स एक ही टाइप का प्लांट्स नहीं, जैसे सीजन वाइज एक सीज़न में एक क्रॉप, जैसे वीट को एक सीज़न में एंड दूसरा सीज़न में ग्राउंडनट्स को, मूंगफली को या शुगर केन को ऐसे डाले तो क्या होता है, ज़मीन अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स पाते हैं. तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड नॉट ओनली दैट, वीड्स को भी हटा सकते हैं इस प्रोसेस से एंड पेस्ट्स को भी. नाउ एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल. अगर बहुत जानवर को लेके एक ही जगह में पाल पोस करे तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. पिसिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ फिशेस को एक ही जगह हम लोग रेयरिंग, दैट मीन्स पाल पोस करे तो पिसिकल्चर बोलते हैं. एंड रेयरिंग ऑफ हनी बीज को एपीकल्चर बोलते हैं. ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स बाय सिलेक्टिंग रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स सिलेक्टेड रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स, पेरेंट्स को चुन के फिर प्रोड्यूस करना ऑफस्प्रिंग्स को, उस प्रोसेस को हम लोग ब्रीडिंग बोलते हैं. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग. दो पेरेंट्स का अलग अलग अच्छा क्वालिटी पेरेंट्स का लेके या प्लांट्स को लेके तो क्रॉस ब्रीडिंग करे तो दोनों क्वालिटीज़ न्यू प्लांट में दिखेगा. Now emasculation means to prevent self-fertilization को हटाने के लिए anthers of one variety of plants are removed and transferred to another plant. Now green revolution, yielding high varieties of crops by importing. तो ये अलग देश से भी कभी कभी न्यू वैरायटी ला के हम इम्पोर्ट करके, इम्पोर्ट मीन्स अपना देश ला के उसको उगाते हैं. तो हमारी वैरायटी इसलिए उसके साथ क्या होता है, उस प्रोसेस से वैराइटीज़ जो न्यू वैरायटी है उसमें ज़्यादा अच्छा पोषण भरा हुआ, जो अच्छा प्रोटीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा. लाइक एग्जाम्पल है शरबती सोनोरा. तो शरबती सोनोरा जो है वो एक राइस प्रोडक्ट है. वो स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, उन्होंने मेक्सिको से ये वैरायटी लाया है. नाउ नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? मीन्स कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कॉम्पाउंड्स. जो हवा में रहने वाला नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कॉम्पाउंड्स में बदल दिया तो उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल ये करने वाला है राइजोबियम बैक्टीरिया भी करते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गे भी ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं. So that's why this bacteria is known as nitrifying bacteria. Now let's get into nitrogen cycle. Nitrogen cycle में first of all the atmospheric nitrogen is taken. Atmospheric nitrogen को कैसे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते एंड इवन सॉइल भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इवन एनिमल्स ऑल्सो कांट यूज़. लेकिन 78% ऑफ नाइट्रोजन इज़ इन द एयर, बट नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. तो किस रूप में हम लोगों को नाइट्रोजन को सिंपलर फॉर्म करना है? तो सिंपलर फॉर्म करने के लिए ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स के रूप में बदलना है. तो उसके लिए एक्चुअली प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है जैसे पीस, दैट मीन्स मटर, मूंग, और ये जो मूंगफली एंड बीन्स, ऐसे इन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जड़ों में छोटे छोटे नोड्स रहते हैं, बॉल्स जैसा.
तो उस बॉल्स में राइजोबियम बैक्टीरियम रहते हैं। तो वो बैक्टीरिया को ये सीखती है कि नाइट्रोजन, हवा में रहने वाला नाइट्रोजन, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करके कन्वर्ट करती है वो। तो कन्वर्ट करके नाइट्रेट बनाते हैं या अमोनिया। सो नाइट्रेट बनाते समय राइजोबियम का बहुत मेन रोल होता है, एंड दैट इज़ वन प्रोसेस। सो विद दैट फिर नाइट्रेट में बदलने के बाद अच्छा सा वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को फिर नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट प्रोडक्ट को प्रोटीन के रूप में बदलते हैं। फिर वो प्रोटीन जो है लीव्स में होते हैं, तो उस प्रोटीन को एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स खाने के बाद जब एनिमल्स फिर एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट मटेरियल जैसे गोबर उसमें एंड सड़ा हुआ चीज़ जैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में, फिर हमको नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद या कुछ महीने के बाद वो अमोनिया जैसा कन्वर्ट होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद अमोनियम या अमोनिया जैसे बदलना, कन्वर्शन, उस कन्वर्शन को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। एंड फर्स्ट थिंग आई सेड दैट लेग्यूमिनस प्लांट्स हवा में रहने वाला नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर नाइट्रेट में चेंज करते हैं, फिर प्लांट को देते हैं प्रोटीन रूप में। तो उस ऐसे नाइट्रोजन को लेते समय दैट प्रोसेस इज़ नोन एज, नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट बनाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, तो उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट फिर प्लांट्स में नाइट्रेट्स मिलने के बाद वो प्लांट्स प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनाते हैं उसको। फिर प्रोटीन से एनिमल्स खा लिया तो फिर एनिमल्स के एक्सक्रीटा, दैट मीन्स डंग, गोबर में, एक वेस्ट में मैटर में, प्लांट्स का वेस्ट मैटर में, गोबर में, दैट मीन्स क्या आता है, गोबर में नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट में फिर कुछ महीने के बाद मिट्टी में मिलने के बाद, नाइट्रोजनस वेस्ट मिट्टी में मिलने के बाद या डेड डिके मैटर मिट्टी में मिलने के बाद, सड़ने के बाद अमोनिया बन जाता है। तो उस प्रोसेस को, नाइट्रोजन वेस्ट जब अमोनिया बन जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट फिर अमोनिफिकेशन होने के बाद ये जो अमोनिया है फिर नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाता है। नाइट्राइट मीन्स NO2, नाइट्रेट मीन्स NO3 विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से ऐसे नाइट्राइट या नाइट्रेट बनता है। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मीन्स प्लांट्स नाइट्रेट्स को, जब राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को बना के देते हैं प्लांट्स को, तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। प्लांट्स नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो नाइट्रेट है फिर नाइट्रोजन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के मदद से ये जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन, हवा में मिलने वाला नाइट्रोजन बन जाता है। किस मदद से? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। देन वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहने वाला राइजोबियम के साथ साथ लाइटनिंग में भी, लाइटनिंग के हेल्प से भी होता है। तो व्हाट इज़ लाइटनिंग? लाइटनिंग मीन्स बिजली गरजते समय, जैसे बारिश होते समय बिजली भी गरजता है, राइट? तो बिजली गरजते समय ये जो हवा में रहने वाला नाइट्रोजन जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होके नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है। तो नाइट्रेट के रूप में जब बदल जाता है तब वो डायरेक्टली रेन के साथ, बारिश के साथ नाइट्रोजनस कॉम्पाउंड्स या नाइट्रेट भी मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में मिलते ही सारा प्लांट्स को ये नाइट्रेट के रूप में मिलता है। फिर नाइट्रेट में मिलने के बाद डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स, बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं।
तो वो भी that is also nitrogen fixation. That means because they are converting atmospheric nitrogen into nitrate, so that's why that process is also known as nitrogen fixation. So two methods hai. One is leguminous plants through rhizobium bacteria, and one more thing is another one is lightning के मदद से. तो ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन. देन डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से फिर नाइट्रेट जो बना है वो नाइट्रोजन जैसा बन जाता है, फिर हवा में मिल जाता है. दैट मीन्स हवा से नीचे आना, मिट्टी में मिलना, फिर मिट्टी से फिर नाइट्रोजन के रूप में फिर हवा में जाना. तो ये एक साइकिल जैसा है, साइकिल हो रही इधर. सो दैट इज़ वाई it is known as nitrogen cycle.